बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन फाउंडर्स एज में सेशन नंबर 7 with the topic selling without a product with the respected expert trainer Miss Saida Ashraf. She is a founding member of Aspire Pakistan and she is a founder and CEO SheWise Startup. She has a vast experience in different sectors in the UK. Uh, she also did different jobs and she has a lot of experience being a strategic lead, a head of business development and business coach. She also lead many projects in the production and business development. She is also did their job and as a director of operations and business development SaaS food production in UK. So she has a lot of experience with her journey and as a startup as an entrepreneur. She is a coach, mentor, and advisor. I am opening the and leaving the floor to Miss Saida Ashraf. She will also introduce herself. Miss Saida Ashraf, the floor is yours. Thank you so much. Thank you for that. So the official introduction ho gaya. And with all the hats that I wear, one of the most enjoying job of mine is coaching and working with startups and students who are looking to develop. They have an idea, and they're looking to develop that idea. And especially, I classify myself as a social entrepreneur. So social entrepreneur वो होते हैं जो ज्यादातर society में जो problems social issues होते हैं वो उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं. सो कमर्शियली आप देखेंगे जो कमर्शियल बिजनेसेस होती हैं, जो कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका प्राइम priority होती है profit making for themselves and their shareholders and their investors. A social entrepreneur is more concerned, of course, they want to make money. Profit is inevitable, लेकिन जो profits वो कमाते हैं, they want to invest that back into the business to make the business viable for all stakeholders. So उसका जो business का impact होता है उस audience के लिए, उस पे वो ज्यादा focus करते हैं. तो society के कोई भी issues हों, आप उसको जहाँ पे आपको लगता हो कि ये बहुत society में problem है, तो उन problems को solve करके उसका जो impact society पे होता है, social entrepreneurs are more concerned with that. So that is a little bit about myself. So आज का agenda जैसे कि हमने start किया था कि what does selling without a product mean? The value in the solution and not the product. Who are you selling to? Build your relationships. Effective communications, जिसका example हमने शुरू में ही देख लिया था कि how important that is. How to overcome objections and the core components of selling without a product. So मैं बिल्कुल इसी order में तो नहीं follow करूंगी because I like to मेरी conversations एक से दूसरे चीजों पे lead होती हैं, but basic theme आज के session की यही होगी. ठीक है? So just to go back in terms of what does it mean to sell without a product, right? Selling selling ideas, selling services, selling skills, or selling expertise. All of these things you can sell without actually having a tangible product. Most of these things, if you're going into selling without a product, you have to build a relationship. So कोई भी चीज अगर आप बगैर उसको दिखाए हुए, बगैर अपने ऑडियंस को ट्राई किए हुए अगर आप उस चीज को बेचना चाहेंगे, तो उसमें सबसे जरूरी है कि जो आपका ऑडियंस है, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर सके. ठीक है? सो आप खुद भी अपनी जाती जिंदगी में ये जानते होंगे कि अगर आपका किसी पे आप भरोसा नहीं करते हैं, अगर आप किसी से ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ना कि आप उनके साथ वो रिलेशनशिप को कायम रखेंगे, आप उनके साथ कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे. आप अपने लोकल मार्केट में भी जाएंगे और देखेंगे कि आपके कोई भी आपका सेलर है, अगर आप कोई भी
फ्रूट है या कोई भी चीज है, अगर वो 100 रुपए किलो बेच रहा है और बराबर वाला 50 किलो बेच रहा है, सेम फूड, सेम इक्वालिटी, सेम सब कुछ, तो जाहिर सी बात है आपको ये होगा कि भाई ये जो 100 रुपए मुझसे चार्ज कर रहा है, ये मुझे लूट रहा है। तो आप जाहिर सी बात है उधर नहीं जाएंगे, आप उसके पास जाएंगे जो 50 में आपको वही चीज वही प्रोडक्ट दे रहा है। सो बिल्डिंग ट्रस्ट, it's a very important component of a relationship. So खास तौर पे अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि बंदा जो है सिर्फ आप पे और आपके कैरेक्टर पे भरोसा करके आपके साथ इंगेज करेगा, स्पेशली इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पे थोड़ी बात आ जाती है पर्सनल ब्रांडिंग की, कि आपका पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो बहुत जरूरी है, और पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट पे बेस होती है। सो आपका कैरेक्टर, आप अगर अगर आपको सब आपके इर्द गिर्द बोलेंगे कि यार ये बंदा तो झूठा है, तो कोई आपके साथ ट्रस्ट नहीं करेगा। एंड दे से कि यू कैन ओनली फूल पीपल one time, you can't keep fooling people all the time. And मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो दूसरों को बेवकूफ समझता है। So a relationship that's built on trust and honesty and integrity, that is one of the key components for selling without a product. We did a session, हमने कुछ अरसे पहले एक पर्सनल ब्रांडिंग पे सेशन किया था। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज उसकी रिक्वेस्ट डाल दिएगा, हम आगे वो सेशन भी कर सकेंगे where you can learn more about personal branding. अच्छा, दूसरा चीज जो है, इट्स क्रिएटिंग perceived value without tangible goods. So यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आ जाती है। सो व्हाट डू वी मीन कि परसीव्ड वैल्यू का क्या मतलब है, कि सामने वाला उस चीज में देख रहा है कि ठीक है ये प्रोडक्ट अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये डेवलप्ड हो जाएगा तो इसमें मार्केट में लोगों को बहुत फायदा होगा और बिजनेस प्रॉफिटेबल भी हो सकेगी। तो ये चीज आर्टिकुलेट करना, सामने वाले को इस खूबसूरती से वो बात समझाना कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के ये इश्यूज हैं, और इन इश्यूज को हम इस तरीके से इस प्रोडक्ट से, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो या अदर मींस के थ्रू हो, आप इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, परसीव्ड, जब आप किसी के को अपनी आइडिया आर्टिकुलेट करके बता रहे होते हैं और कोई प्रोडक्ट आपके पास पहले से मौजूद नहीं होता है बना हुआ, तो उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत होते हैं, राइट? क्योंकि आपने उसको ट्राई नहीं किया, सिर्फ आपके जहन में है। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक आप, क्लोजेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या आप स्विमिंग करना सीख रहे हैं और आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है कि ये करेंगे तो गाड़ी इस तरीके से चलेगी, आप पहले स्पीड पे उस पे ब्रेक पे पैर रखेंगे, फिर आप स्पीड को चलाएंगे, फिर आप गियर बॉक्स को चेंज करेंगे, फिर आप अपने स्टीयरिंग को मैन्यूवर करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, आपको करना है। लेकिन जो इसके न्यूएंसेस हैं, जिस वक्त आप करने बैठते हैं कि किस टाइम पे आपने स्पीड बढ़ानी है, किस टाइम पे आपने ब्रेक लगाना है, कब आपने स्टीयरिंग को मैन्यूवर करना है, वो चीज आपको बगैर एक्सपीरियंस के नहीं आएगी, राइट? और आप बता भी नहीं पाएंगे, आप उस चीज को ऑलमोस्ट आर्टिकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो समझ डेवलप्ड नहीं हुई है। सो इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप ब्लाइंड स्पॉट्स जो आपके प्रोडक्ट्स में पोटेंशियली हो सकते हैं, वो आपको अगर थोड़ा बहुत अंदाजा है तो अपने कस्टमर को बता देना कि जब हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो हो सकता है कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स इसमें आए, कुछ गलतियां हमसे हो। एंड अगेन गोइंग बैक टू द फेस, कि अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है और आपकी आइडिया में दम है और बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो वो उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को आपके ट्रायल पीरियड में इग्नोर कर देगा। इवन इन बिजनेस अगर आपसे थोड़ा बहुत शुरू में लॉस्ट होता है या आगे चल के लॉस्ट होता है, तो उन रिलेशनशिप्स जो सॉलिड ट्रस्ट पे बिल्ड हुई होती हैं, वहां पे वो गलतियां को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये
कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जब आप अपने आइडिया को बगैर प्रोडक्ट के सेल करना चाहेंगे, ठीक है? ओके, सो मेन थिंग ये है कि हमने ये सवाल देखना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी ट्राइंग टू सॉल्व, राइट? और उसके उस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर देंगे तो उसके फायदे क्या होंगे, उसके आउटकम्स क्या होंगे, कितने लोगों को उससे फायदा होगा, कितनी जिंदगियों पे अफेक्ट होगा। तो जो डोमिनो इफेक्ट है या रिपल इफेक्ट है उस चीज का, उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि इसका जो जब ये प्रोडक्ट डेवलप्ड हो जाएगा और मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तो कितने लोगों को उस चीज से फायदा होगा, एंड हाउ विल इट इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ अदर पीपल, आप योर कस्टमर्स बेसिकली, ठीक है? So if you're trying to sell something, so obviously आपको अपना audience को जानना बहुत जरूरी है कि who am I selling to? Okay, so आपके जो audience हैं वो कौन है, उनकी एज ग्रुप क्या है, तो वो कौन सा सेगमेंट है सोसाइटी का जिन्हें आप बेचना चाह रहे हैं, क्या वो औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, एल्डरली हैं, वर्किंग वुमेन हैं, घर पे बैठने वाली वुमेन है, काम पे जाने वाले लोग हैं। सो हु इज योर मार्केट, सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, एंड फिर उसमें जब आप अपना ऑडियंस को समझ जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे, तो easy it's easy to then be able to identify, especially like I said, some of the blind spots that you may have. It's also really important to research your market. आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी मार्केट में उतरने से पहले आप अपनी इंट्यूशन अपनी उस पे नहीं सिर्फ कर सकते कि मेरा ख्याल है कि ये बहुत काम करेगा। जो भी प्रोडक्ट हो या सर्विस आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आपने अपने जहन में सोच लिया, ओ मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत चलेगा, लेकिन आपने कभी किसी कोई रिसर्च नहीं की, जो लोग इस्तेमाल करेंगे, कभी आपने उनसे पूछा ही नहीं कि क्या अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में आए और बने तो क्या आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके लिए कितने पैसे देंगे। कि आप सोच रहे हो कि ओ मैं ये प्रोडक्ट 10,000 रुपए में बेचूंगा, और ऑडियंस जो आपके जो क्लाइंटेल है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू एन एग्जाम्पल कि आपने कोई ऐप बनाया है, राइट, एंड आपने, चले इंस्टाग्राम को ले लेते हैं, अगर इंस्टाग्राम के आप कंपटीशन आप एक ऐप बना रहे हो उस हिसाब से, सो इंस्टाग्राम के जो मेन ऑडियंस ज्यादातर जनरली तो सभी हैं, लेकिन एक्चुअली जो प्राइम ऑडियंस जो हार्डकोर उनके मेन ऑडियंस हैं वो फीमेल्स हैं। फीमेल्स जो कि खास तौर पे फैशन में, कॉस्मेटिक्स में, इन चीजों में जो इंटरेस्टेड हैं, वो लोग इंस्टाग्राम को बहुत इस्तेमाल करते हैं, राइट? अब आप देखेंगे फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सारी चीजें आप इंस्टाग्राम पे अगर आपको चाहिए हो ये सब, तो आप कोई भी कस्टमर होगा वो इंस्टाग्राम पे फौरन जाके देखेगा कि लेट मी सी क्या लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, लेट मी सी के नया ब्रांड कॉस्मेटिक्स का क्या आया है या फ्रेग्रेंस का क्या आया है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस है या कोई बंदे हैं जो अपने घर में काम करवाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क का काम करवाना चाह रहे हैं, खासतौर पे अगर आप कोई बिजनेस है जो कंस्ट्रक्शन वर्क का काम करवाना चाह रहे हैं, तो आई एम श्योर जब आप कंस्ट्रक्शन कंपनी को ढूंढने जाएंगे तो आप इंस्टाग्राम पे नहीं जाएंगे, राइट? उसके अदर मीन्स होंगे, उसकी अदर प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पे आप जाके ढूंढेंगे। मे बी हो सकता है फेसबुक हो, आई डोंट नो, लेकिन इट गिव्स यू एन आइडिया कि how important it is to know your audience, कि आपके ऑडियंस जो हैं जिनको आप बेचेंगे वो कौन है, उनकी एज क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो रहते कहाँ पे, उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या है। अगर आप कोई प्रोडक्ट जैसे कि मैंने कहा 10,000 में बेचना चाह रहे हैं और आप स्कूल की बच्चियों को आप
वो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं या यंग गर्ल्स को बेचना चाह रहे हैं, ऑफ्टन स्टूडेंट्स के पास या स्टूडेंट्स को बेचना चाह रहे हैं, तो ऑफ्टन स्टूडेंट्स के पास इतना डिस्पोजेबल इनकम नहीं होता। कम से कम मेरी एज, हमारे दौर में तो नहीं होता था। आई डोंट नो अबाउट राइट नाउ, आप लोगों के पास शायद यू मस्ट बी अ रिच ऑडियंस देन स्टूडेंट्स एंड वी वर। सो इन चीजों को सबको आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस एट दिस स्टेज बिफोर आई मूव ऑन? अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि मुझे अब आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं, सो somebody will have to keep me informed अगर चैट में कोई सवाल हैं या किसी ने अपना हाथ उठाया हुआ है, because I can only see my own screen, my presentation. So please, अगर किसी का हाथ उठा हुआ है तो बता दीजिए। नहीं? Okay, let's move on. So again, वही बात जो हम पहले कह रहे थे कि it's very important to create your personal brand, build a reputation that speaks for itself. So मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके किसी भी महफिल में आप अगर जाएंगे, आजकल आप हमेशा सुनते होंगे कि नेटवर्किंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। सो किसी भी महफिल में आप अगर जाएंगे, किसी भी नेटवर्किंग इवेंट पे आप जाएंगे, सो आपसे पहले आपका रेपुटेशन वहां पे पहुंच जाएगा। अगर आपको पता है, आप खुद सोचिए इस बारे में कि अगर आप किसी महफिल में किसी इवेंट में जा रहे होते हैं और वहां पे आप अटेंडेंस की जो लिस्ट होती है उसमें आप लोगों के नाम देखते हैं कि कौन कौन आ रहा है इस इवेंट में, तो आप ऑटोमेटिकली वो लिस्ट, गेस्ट लिस्ट देख के आप डिसाइड कर लेते हैं कि यार मैं इस इवेंट में जाऊं या ना जाऊं। इज इट वर्थ मी गोइंग और इज इट वर्थ मी नॉट गोइंग? क्या मेरा टाइम यहाँ पे वेल इन्वेस्टेड होगा या मेरा टाइम यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम होगा? सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा कि आपका रेपुटेशन आपसे पहले पहुंच जाता है आप जहां पे भी जाएंगे। सो हैविंग अ रेपुटेशन कि जहां लोग आपसे मिलना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो, आपसे नॉलेज सीख करना चाहते हो, आपसे कनेक्ट करना चाहते हो, आपसे अफिलिएट करना चाहते हो। सो अफिलिएशन आजकल आपको देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे हर कोई जो है, जहां किसी इन्फ्लुएंसर, कोई भी बंदा जो हो, अच्छा वेल नोन हो विद इन सोसाइटी या सेलिब्रिटी हो, फौरन तस्वीर उनके साथ खींच के और वो अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि उस बंदे ने, उस बंदी ने अपना रेपुटेशन, अपना इमेज, अपना ब्रांड इतना स्ट्रांग बनाया हुआ होता है कि लोग उसके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, अफिलिएट करना चाहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपना रेपुटेशन, अगर कोई भी आपको, मेरे हिसाब से अगर कोई आपको एक दफा ये बोल देता है कि नहीं आप झूठे हैं, तो मैं उस चीज को बहुत पर्सनली लेती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि दैट इज समथिंग दैट आई नीड टू रिजॉल्व कि वो बंदा मेरे बारे में ऐसा सोच क्यों रहा है। सो हम सबको पता है, आई थिंक we all know our own characters. So having a personal brand that has integrity and honesty मेरे हिसाब से बहुत important है इस पूरे सिनारियो में। Being memorable and consistent, so that is really important कि लोग आपको याद रखें, आपकी consistency आपके platforms पे हो, that is really important. So for example, myself, I consider myself to be, and most business people work on their personal branding. So it's very important कि मैं हर दफा एक ही मैसेज डिलीवर करूं कि ये नहीं कि मैं आपके इस सेमिनार पे ये इंटेग्रिटी की बात कर रही हूं और कहूं कि नहीं, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, और मैं इन्वेस्टर्स की मीटिंग में जाती हूं तो मैं बोलूं नहीं यार, लोगों को झूठ बोल के लोगों के उसमें इन्वेस्ट करो। सो कॉन्ट्रडिक्शन है। सो कंसिस्टेंसी आपके कैरेक्टर में, आपके प्लेटफॉर्म्स में, आपके उसमें बहुत जरूरी है। सो आई थिंक I've said enough about that. Again, building trust, building credibility, we've spoken about that. Being able to show your area of expertise, right? I think ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी वैल्यू बता सकें, कि
आपको कितनी मालूमात है अपने सेक्टर के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसके बारे में, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, पर उस पूरी इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है, उस सेक्टर के बारे में पता है। शुरू शुरू में जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहेंगे और आप कॉन्वर्सेशन किसी के साथ बात शुरू करेंगे, तो एक हद तक ही आप किसी के साथ अपने प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। आपको अपनी नॉलेज बेस को वाइडर करना पड़ेगा ताकि आप लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस में एंगेज कर सकें। लोगों का ट्रस्ट जो आप बिल्ड करेंगे वो अपनी एक्सपर्टीज से बिल्ड करेंगे कि हाँ, इस बंदे को पता है यार कि ये क्या बात कर रहा है, इसको प्रॉब्लम भी समझ में आई है हर तरीके से, और इसने जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको भी, उसकी भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी एक्सपर्टीज को सही तरीके से, अगेन, कम्युनिकेशन आर्टिकुलेट कर पाए, टेस्टिमोनियल्स आप लोगों से दिलवा पाए अपनी ऑडियंस को। सो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आई थिंक डिलीवर अ वैल्यू कंसिस्टेंटली बिफोर मेकिंग अ पिच। हाँ, सो ये सारा हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। अच्छा, आई थिंक वन थिंग अगेन वो ही बात आ गई कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आप अपनी कहानी जो है, आपकी स्टोरी जो है, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास प्रोडक्ट तो है नहीं, तो आपको इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि लोगों को इंगेज करने के लिए आपके पास एक एक जैसे हमें मिर्च मसाला वाली कहानी चाहिए होती है, एंड मिर्च मसाला से मुराद ये नहीं कि आप उसमें झूठ ऐड करें। मिर्च मसाला से मुराद ये कि इंटरेस्टिंग हो, कंपेलिंग हो, राइट? लोग सुने। अगर आपकी स्ट्रगल्स हो रही हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आपने घंटों काम किया है, इनफैक्ट आपने हफ्तों, महीने, सालों काम किया है इस आइडिया को डेवलप करने में, और इस, और किन किन मरहलात से आप, स्टेजेस से आप गुजरे हैं इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, कितनी आपकी मेहनत लगी है, तो उसको एक कहानी बना के सामने वाले के सामने पेश करना कि देखो, जब मुझे ये आइडिया आया था तो ये हालात थे, ये सिचुएशन था, इस वजह से मैंने इस आइडिया को कंसीव किया, और फिर मैंने इस पे मेहनत की, मैंने हफ्तों, महीने, सालों मेहनत की, और मैं इन इन परेशानियों से गुजरा, और मैंने ये कुछ सीखा, और मैंने ये कुछ सीख के अब मैंने ये रिफाइंड प्रोडक्ट बनाया है। सो जब आप किसी को ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर वो जो बंदा होता है वो बहुत कंपेल हो जाता है, वो एंगेज हो जाता है आपके साथ टोटली। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक अच्छी स्टोरी हो बताने को, और आप सही तरीके से आर्टिकुलेट करें। ये नहीं कि आप एक ही बात को 2 घंटे या 3 घंटे, या हमारी यहाँ बहुत लॉन्ग विंडेड जो होती हैं बातों को करना, खींच के बताना, अपने आप को सही तरीके से बयान नहीं कर पाना। कम्युनिकेशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, आई थिंक, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स में, कि सही अल्फाजों का इस्तेमाल करना, कम अल्फाजों को इस्तेमाल करना और मुद्दा बयान करना अपने आप में एक एक आर्ट है। एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप इस आर्ट को एज एन एंटरप्रेन्योर, आप इस आर्ट को सीखें। So that would be one of the most things. Um, so yeah, let's move on. So I think जिस वक्त आपके पास tangible कोई प्रोडक्ट नहीं होता, राइट? सो उस वक्त आप एक्चुअली जो लोगों को इंगेज कर रहे होते हैं, वो आप लोगों की फीलिंग से, इमोशन से इंगेज कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आजकल वेट लॉस का बहुत क्रेज है सब जगह। सो आपने एक वेट लॉस का या तो ऐप बनाया, या आपने कोई इंजेक्शन बनाया, या आपने कोई पिल्स बनाई, कोई मेडिकेशंस बनाई आपने, और आप उसको मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप एक्चुअली जो आपका कस्टमर है, आप उसकी उसकी इमोशनल प्रॉब्लम को आप वो हल सॉल्व कर रहे हैं। तो उस क्लाइंटेल के साथ, उस बंदे के साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, जो एंगेजमेंट है, वो एक्चुअली बहुत बहुत इमोशनल लेवल पे है, राइट? सो इन इन इस चीज को अंडरस्टैंड करना,
कि ये किस लेवल पे है, और फिर उसको ऑब्वियसली लेवरेज करना, लेकिन लेकिन उस हिसाब से कि इट्स नॉट कि वो बंदा पुट ऑफ ना हो जाए। सो सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को आर्टिकुलेट करना, उसकी इमोशंस को एंगेज करना, और फिर वो प्रोडक्ट को सेल करना, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। सो इन चीजों का आपको इन न्यूआंसेस, और ये न्यूआंसेस कहलाते हैं, राइट? इन न्यूआंसेस का आपने ख्याल रखना है कि जिस वक्त आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आप इन चीजों को समझ सकें, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो इन चीजों की कि मेरे क्लाइंट की इमोशनल फीलिंग क्या है, मेरे क्लाइंट की डिजायर्स क्या है, मेरे क्लाइंट्स के फेयर्स क्या है, किस चीज से वो डरते हैं। सो इन चीजों को आपको समझना होगा जिस वक्त आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जाएंगे। ओके, सो ऑफ्टन लोग जो होते हैं वो अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है मार्केट से और उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आपको अपने कस्टमर को जब आप वो बेचने जाएंगे तो आपका कस्टमर बोलेगा कि एक्चुअली ये बहुत एक्सपेंसिव है, दिस इज टू एक्सपेंसिव। सो आप उस चीज को किस तरीके से ओवरकम करेंगे? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स यूज द वेट लॉस एग्जांपल अगेन, कि कोई इंजेक्शन है या कोई ऐप है कि जो आप अपने क्लाइंट को सेल करना चाह रहे हैं, तो आप हाउ डू यू, वो बोलेगा नहीं ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं 50,000 इसमें नहीं, इंजेक्शन नहीं स्पेंड कर सकता, या मैं 50,000 का ऐप नहीं साल का डाउनलोड कर सकता, जो आप सर्विसेज उसमें कोचिंग दे रहे हैं, जो भी है, जो भी आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट है। सो बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट ऑब्जेक्शन बाय सेइंग के ओ ओके चलो ठीक है, ये तो टू एक्सपेंसिव है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, और कोई रैशनल नहीं देना उस चीज का, बस एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ठीक है, ओके टू एक्सपेंसिव है, ठीक है, गुड बाय। या फिर आप बोले नहीं नहीं सर, उनकी मिन्नतें कर रहे हो कि नहीं नहीं सर बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, मैं तो 50% आपको ऑफ दे दूंगा, या 100%, ये 90% उसको ऑफ दे दूंगा, या मैं आपको फ्री में उसको आप इस्तेमाल कर लिएगा। इन चीजों में पढ़ने से प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो डिप्लीटेड होती है, आपके जो पूरा एक्चुअली प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी वैल्यू कम होती है। सो यू वुड, द वे टू सेल दैट प्रोडक्ट वुड बी कि आप उस बंदे को जो इंजेक्शन, जिसको जरूरत है इस इंजेक्शन की, आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई जरूरत तो इसको है क्योंकि इसने इंगेज किया है और ये लेना भी चाहता है, लेकिन इसके पास वो एक्सपेंसिव है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने उसको ये रियलाइजेशन दिखानी है कि एक्चुअली ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये सिर्फ ना कि एक प्रोडक्ट है जो कि वजन कम करेगा, ये एक्चुअली आप अपनी सेहत में आने वाले वक्त में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, आप वो कर रहे हैं, तो फिर बंदा उसको सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ओ यस, अगर मेरा वेट हैवी हूं मैं तो ये मेरे लिए एक हेल्थ हैजर्ड है, और हेल्थ हैजर्ड है तो मुझसे स्ट्रोक हो सकता है, मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, मैं आगे चल के और लोगों को मोहताज हो सकता हूँ, अगर मुझे डायबिटीज हो जाए उससे मुझे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अगर मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, ये ऐप इस्तेमाल करता हूँ रोज, या इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, या इंजेक्शन इन्वेस्ट करता हूँ, तो इससे ये होगा कि मेरी सेहत ठीक रहेगी, मेरा वेट कम होगा, और मैं अपनी जिंदगी आगे बहुत अच्छी सेहत के साथ गुजार सकता हूँ। तो उसको वो इन्वेस्टमेंट समझ में आएगी, राइट? फिर अचानक उसको वो 10,000 का जो प्रोडक्ट है या 50,000 का जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो उसको इतना एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी, पूरी जिंदगी का सवाल आ गया यहाँ पे। सो तो बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई जो प्रॉब्लम आप अपने क्लाइंटेल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, कि उसका इम्पैक्ट उसकी जिंदगी पे किस किस तरीके से है, और जब आप अपनी पिच बना रहे हैं उसको बेचने के लिए, तो आप वो सारी चीजें लाके उस पिच में आप उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि उसको समझ में आए कि एक्चुअली ये इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, मेरी सेहत से बढ़ के चीज नहीं है। So this is one of the things that you can use to overcome objections आपके प्रोडक्ट के लिए।
अच्छा, इस वक्त मैं फिर दोबारा पूछूं कि any questions? No questions? Okay. So the core components of selling without a product is to highlight the limited opportunities. कि आप ये बोल सकते हैं कि सर ये जो अभी हम आपको ऑफर कर रहे हैं ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। एक दफा ये प्रोडक्ट बन गया, एक दफा इसकी मार्केट बन गई तो ऑब्वियसली फिर आपको हाई वैल्यू पे उसको देना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का हाईलाइट करना कि ये आप वैल्यू दे रहे हैं। शोकेस वैल्यू ओवर टाइम कि वक्त के हिसाब से आने वाले वक्त में इस चीज की क्या वैल्यू बन सकती है। एंड अगेन एवरीथिंग दैट वी सेड कि क्रिएटिंग दैट इमोशनल कनेक्शन, the frame it as an opportunity, बिल्कुल वही जो अभी हम कह रहे थे कि how it's an opportunity, ये opportunity अभी इस वक्त में मौजूद है। आगे चल के आपने खुद देखा होगा बिजनेसेस में ऑल द टाइम आप कंपनियां हैं ये एडवर्टाइज कर रही होती हैं कि ओ ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ 50% ऑफ है, सिर्फ 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, 24 घंटे बचे हैं या 12 घंटे बचे हैं, इसके बाद जो है ये ओरिजिनल प्राइस पे चले जाएगा, फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स एंड इनकॉर्पोरेट देम इन आपकी जो सेलिंग होगी उसमें इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। So again, just to recap and the takeaways, कि कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। build trust, credibility and relationship, tailor your pitch to create value and invest in your personal branding. And I think this is it. This is today's presentation. Okay, I'm going to stop sharing. Thank you so much for this valuable presentation. Now we are opening the floor for the Q&A session. Okay.